Excuse me, sir. Good day, everyone. Welcome, Thank, everybody. thank you, sir. Yes, I am first sending some photos, and today we will be discussing on 2 points. The important topic for today's discussion will be one will be the glandular system, how there is reflection of glands in our correspondence system, and the another will be the partial correspondence, because partial correspondence is also very important, and we should for learning partial correspondence, you must understand this fact that this is the energy system. We should not fix our mind that, oh, this is the point, I have got the point, and now we can just treat the patient. And this is not like medical or medicine type of system that this medicine I have learned and I will use, take this medicine and I will be okay. Nothing like that. This is all energy system, and hence there could be you have to check the overlapping of the energy correspondences. You have to check that how similarity is there. Basic thing is similarity, because everything, the universe is operated by the triorigin system. The whole universe is operated by the triorigin system, or you may say in better way, it is operated by the six key system, because tri-origin just is tri-origin reflects itself in the form of six key, and six key is also the same type of fundamental energy as the tri-origin. So when we just learn six key, we learn the uh, basic basic energy system of our creation and operation, and also destruction, all the three. And but in triorigin we have the limited scope, because there is only hetero, homo, neutro, neutron, only four is there, four energy is there. But here we can have six and sometimes eight. We will discuss in our six key classes how you can select through the symptoms. You can select the different six key or eight key energies, and how you can just operate it for your medical purpose. Now, this is the reason that this energy, the first thing in today's discussion, the important thing in today's discussion is that there is reflection of partial correspondence. Yes, come, Syamla ji has come. Yes, Namaskar. Good evening, everyone. namaskar. Good So evening. Welcome. the important thing is that this in partial correspondence system, this is also the basic homo energy. Homo energy is the primary energy which creates all the correspondences, and including the partial correspondence. Sometimes you will imagine, sometimes you will get confused, fully confused, that whatever we have learned, that we will forget, and just how can I locate the correspondence? But you will be confused. But if you know the fundamental things which I am talking about, because most of the things you will not find in the books or some discussions, that why it is there in the initial stages. After very many years, I could understand that, oh, this is the way of the different correspondence system, and that all the correspondence system are there only because of the homo system. Homo energy means this is the similarity energy. Similarity energy, this is there. जैसे कि आप सिमिलरिटी एनर्जी की वजह से ही जो है, इस पूरा दुनिया में जो होमो पावर है,
हेट्रो पावर है, न्यूट्रो पावर, ये पूरा दुनिया को, सूरज चंद्रमा से लेके जितने स्टार्स है सबको यही बनाया, यही ऑपरेट करता है, क्रिएट किया, बना, ऑपरेट किया और डिस्ट्रक्ट किया, तीनों काम उसी का करता। तो ये जो अब आपको आज बताने जा रहे हैं पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको कंफ्यूजन से रोकने के लिए पहले ही हम इतना फंडामेंटल्स आपको दे देते हैं, कुछ उदाहरण भी आपको बता देते हैं, सो दैट कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि वो बिल्कुल कोई पैटर्न ही नहीं होगा जो हम बताने जा रहे हैं। इसका तो स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस में तो कुछ पैटर्न भी दिखेगा, बट पार्शियल वाला में उतना नहीं आपको पैटर्न दिखेगा, उसको आप फिर होलिस्टिक वे में नहीं ले सकते, वो पार्शियल मींस पार्शियल, तो वी विल डिस्कस इट। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि व्हाई इट हैपेंस। देखिए होता क्या है कि द होमो सिस्टम ऑफ जो सिमिलरिटी का है, वह सिस्टम इतना पावरफुल है पूरे यूनिवर्स में कि सभी जगह वो हर चीज में, आप बैठे हुए हम बैठे हुए, इसके साथ भी ये ऑपरेट करता रहता है, आपके साथ और हमारे साथ ऑपरेट करता है। सपोज कीजिए कि हमारी बातें आपको उतना अच्छी नहीं लगेगी तो आप लीव कर जाएंगे, ये मीटिंग छोड़ के आप चले जाएंगे, बट अच्छी लगेगी तो आप जो है ना, आप लगातार आप ज्यादा देर तक भी बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कहीं और मटेरियल मिलेगा क्या। ये व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ द होमो पावर, सिमिलरिटी पावर, सिमिलरिटी, समझ गए ना, क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं तो आप क्लास में बैठे, हम जो बताना चाहते हैं आप नहीं जानना चाहते हैं, आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप चले जाएंगे। जैसे कि आप ये देखिए कि जब आप किसी भी घर में जो बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि वो बच्चा या तो माँ के चेहरे से सिमिलर होता है या फिर कभी कभी पिता के चेहरे से सिमिलर होता है ना। कभी कभी दो बच्चा जो है ना सिमिलर होगा और दोनों ट्विन टाइप का होगा और ट्विन में दोनों का चेहरा मिलता जुलता होगा, है ना। और कभी कभी आप क्या देखेंगे कि बच्चा न माँ से के चेहरे से मिलता है न पिता के चेहरे से मिलता है, ये दादा के चेहरे से मिलता है ना दादा के चेहरे से मिलता है। या कभी कभी आप देखेंगे किसी और के चेहरे से मिलता है, कभी कभी पड़ोसी के चेहरे से आता है तो लोग मजाक बना देते हैं कि पड़ोसी के चेहरे से क्यों मिल गया भाई, तो होता क्या क्या ये तो लोग हंसी की बात हो गई कि भाई ये बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, ये पड़ोसी के घर के से क्यों मिल रहा है। तो इट इज नॉट ए बैड थिंग। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपने घर में उस पड़ोसी का इंपॉर्टेंट आदमी समझ के उसका फोटो लगाए हुए, and when father or mother sees always and he has imagination of that person, so this will reflect, the same thing will be reflected in the face of the child, समझ रहे हैं ना। नाउ तो ये चीज जो है, सर एक्सक्यूज मी, सर हाँ? आप सबको म्यूट कर दीजिए एक बार, म्यूट कर दीजिए एक बार। सबको म्यूट कर दें। अच्छा कुछ हल्ला हो रहा है ना, यस यस यस। अच्छा एक मिनट, टर्न ऑन, देखिए तो म्यूट हो गया, अभी भी नहीं हुआ, हो गया लगता है क्या, लेकिन सभी हो गया, अब आप भी नहीं बोल पाएंगे लगता। नहीं नहीं वो तो गलत हो गया, तो ना ना ये नहीं हुआ। लेट मी, ठीक है सर, आप ठीक है, आप सब म्यूट हो गए और फिर ठीक है, ओके अब ठीक है ना। या तो मैं क्या कह रहा था कि the primary thing is that in the correspondence system in सुजोक जो प्रोफेसर पार्क जेऊ ने जो सुजोक का कॉन्सेप्ट दिया और इतना ज्यादा ये पावरफुल हो गया कि पूरे दुनिया में एकदम आग की तरह फैल चुका है सुजोक, और लोग इससे इतना ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं
तो ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है? सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, है ना। तो आपका हाथ जो होगा, ठीक है, आपके पड़ोसी के हाथ से नहीं मिलेगा, बट आपके शरीर से जरूर मिलेगा। और ये जो है आपका हाथ में ये दो पैर आप ही का रिफ्लेक्स पॉइंट होगा, और उसमें आपको जो कोरेस्पॉन्डेंस मिलेगा वो आप ही को फायदा करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। सिमिलरिटी तो रहेगी सबके साथ, बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर ऑलमोस्ट द सेम, है ना। ऑल ह्यूमन बींग, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल द क्रिएचर्स, सभी क्रिएचर्स को आप देखें सिमिलरिटी तो मिलता है। भले ये कह सकते हैं कि अरे कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, उसका शकल तो बिल्कुल नहीं मिलता है, आदमी के शकल से तो नहीं मिलता है, बट ये तो फंडामेंटल चीज मिलता है ना, कि दो आंखें उसको है, दो कान है, मुंह है, ये सारा चीज तो मिल ही रहा है ना, नाक है सांस लेने के लिए, और वो भी सारा एक ही जगह पर फ्रंट साइड में। कछुआ को भी देखेंगे तो फ्रंट में, ऐसा नहीं है कि उसका आंख पीछे है और कान जो है साइड में आ गया, उसके पेट के आसपास में कान, ऐसा कभी देखे नहीं, उसके हेड में ही सारा चीज होगा, वो भी फ्रंट साइड में ही होगा, है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि जब एनिमल, मनुष्य कभी एनिमल रहा या एनिमल ना भी था, पहले हो सकता है मनुष्य मनुष्य है, बट एक एनिमल कोरेस्पॉन्डेंस जो है, क्योंकि इतना तो तय है कि मनुष्य जो है वो एनिमल से डेवलप होकर के आया है, या जो भी स्थिति हो, लेकिन एक एनिमल टाइप का एक कोरेस्पॉन्डेंस प्रोफेसर पार्क जो ने देखा और उसको उन्होंने बताया है, और हम भेजते हैं उसको। कुछ पहले थोड़ा सा ग्लैंडुलर हम देखें, जो कि ग्लैंडुलर ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, तो पीछे का पेज निकालिए, ग्लैंड्स वाला, वो हमने जो दिया है, वो पेज कितना है? जा, ये पेज है, फिगर 55। हाँ, फिगर 55। तो फिगर 55 में आप देखिए कि जब हम लोगों ने देखा कि जितने ऑर्गन्स है, बॉडी के पार्ट्स हैं, उसका सिमिलरिटी जब हमको मिल रहा है, तो जितना ग्लैंड्स है हमारे शरीर में उसका भी सिमिलरिटी होगा, वो ग्लैंड्स जहां पर है उसी के सिमिलरिटी के हिसाब से आप मिलेंगे, है ना। तो वो पॉइंट्स आपका जो है पिट्यूटरी बॉडी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड का थंब के पास है, ये ऑलमोस्ट आप समझिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ये दो भौं के बीच में जो आपका एरिया है ना, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का मिलता है ना। पीनियल का भी उसी जगह थोड़ा सा बगल में है, उनको पीनियल का इसमें नहीं शो किया हुआ है, बट वो उसका भी ग्लैंड का थोड़ा बगल में आ जाता है, उसी के पास में। और थायराइड का तो आपको कल उसके पहले ही डिस्कस हुआ, गले के जस्ट सेंट्रल पॉइंट पर जो है ना थायराइड ग्लैंड का होगा, और थाइमस का चेस्ट के सेंट्रल पॉइंट पर आता है। कहीं कहीं पे उसको थोड़ा नीचे दिखाया गया है, बट ये जो है ना चेस्ट का जो एकदम सेंट्रल पॉइंट होगा, वो उसको हम लोग थायराइड के लिए करते, क्योंकि ये लोकेशन आपको याद रखना जरूरी है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिएगा मे बी कि आप पॉइंट नहीं पकड़ पाए। और सेंट्रल पॉइंट इसलिए आपको बता रहे हैं कि आगे चक्रा सिस्टम भी जब आप पढ़ेंगे तो उस चक्रा सिस्टम में उसको लोकेट करना होगा कि किस जगह उंगली में, हाथों में किस जगह पर वो आएगा, वो एरिया जो होता है एकदम सेंट्रली लोकेटेड, है ना। उसके बाद फिर आपका थाइमस, है ना। थायराइड ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। टीएसएच हार्मोन जैसा चीज है, वो भी वहां से निकलता है जो थायराइड को कंट्रोल करता है, प्लस बहुत सारे वो हार्मोन्स अलग से निकालता है टू कंट्रोल द क्या कहते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मालिक है सभी ग्लैंड का, है ना। जिस तरह से ब्रेन ऑपरेट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी ऑपरेट करता है, आपके बॉडी के एक्सट्रीमिटीज को भी ऑपरेट करता है ना। इन द सेम वे द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट glands as the brain controls all the different parts of the body and in all the different organs of our body. Then
ये आपको थायराइड ग्लैंड है, अगर ये ज्यादा एक्टिव हो गया तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, बॉडी एकदम से सूखने लगेगा। और अगर हाइपोथायराइड, ज्यादातर तो लेडीज को हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें कि हाइपोथायराइड में दिस देयर इज स्वेलिंग इन द बॉडी एंड अल्ट्रोक्सिन दवाई वगैरह खाते हैं, कोई फायदा उधर नहीं होता, बट ये पॉइंट करें तो बड़ा झटाझट फायदा हो जाता है इसमें। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड भी जो है वो बच्चों में होता है, बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद वो खत्म हो जाता है। ये एक्चुअली इम्यूनिटी डेवलप करता है थाइमस। थाइमस एड्रिनल ग्लैंड जो है यह ये किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल ग्लैंड। यह जो है ना आपके समटाइम्स मेटाबॉलिक रेट पर को कंट्रोल करता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये जो है पानक्रियाज, ये तो जानते ही हैं, ये डायबिटीज शुगर इसके कम निकलने की वजह से आदमी को शुगर की बीमारियां हो जाती है। ओवरीज आप जान ही रहे हैं, ओवरीज एंड टेस्टिकल्स, ये सेक्स हार्मोन्स हैं, इससे लेडीज में पीरियड्स का टाइमली आना, और टेस्टिकल्स जो है इसमें मेल हार्मोन्स है, जिसमें कि वो बच्चे के लिए जो है वो टेस्टोस्टेरोन और प्लस ये जो निकलते हैं वो स्पर्म वगैरह निकलते हैं, वो इसके माध्यम से निकलते हैं। तो इस तरह से आपके सारे सिस्टम पर ये कंट्रोल जो है सच पूछिए तो ग्लैंड्स का होता है। नॉट ओनली दैट, ये ग्लैंड्स जो है हर ग्लैंड किसी न किसी सिक्स की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है ना। और बल्कि इन माय ओपिनियन इसको भी थोड़ा सा देखना होगा, इस पर डिटेल थोड़ा स्टडी की भी जरूरत पड़ सकती है, बट हम ये कह सकते हैं कि ग्लैंड जो है वो कंट्रोल ऑर्गन्स को भी कर लेता है। जैसे मान लिया कि आपका स्टोमक है और स्प्लीन है, दोनों क्या है, ह्यूमिडिटी का ऑर्गन है ना, एक हेट्रो है एक होमो है। बट इन माय ओपिनियन ग्लैंड जो होगा, ह्यूमिडिटी वाला जो ग्लैंड होगा, ये दोनों को कंट्रोल करेगा। यही कारण है कि आप देखिए पानक्रियाज एक तरफ तो इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता घटाता है आपके बॉडी में, सेल में जाकर के उसके मेटाबॉलिक रेट पर प्रभावित करता है, और दूसरी तरफ भी पानक्रियाटिक जूस निकाल करके डाइजेशन में भी काम करता है। यानी कि आप ये देखिए कि ये पानक्रियाज जो है ये कितना, और इस पर अगर कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर चल रहा हो तो आप समझ लीजिए कि ये मोटा मोटी जो है ना स्टोमक और स्प्लीन के फंक्शनिंग तक उसको प्रभावित करता है। क्या कि ये न्यूट्रो हुआ, हेट्रो होमो के बीच में एक न्यूट्रो होगा ना, बीच बचाव वाला जो एनर्जी है वो ग्लैंड्स है। ऑल्दो ये स्टोमक, और हम तो इसके साथ हम थोड़ा कोरिलेट कर रहे हैं, अब कहाँ तक ये प्रभावित करता है ये तो थोड़ा मेडिकल साइंस का चीज है, वो आप और स्टडी कर सकते हैं, या जरूरत भी नहीं है, आप उस पर प्रेस कीजिए, हार्मोनाइज हो जाएगा। बट एनीवे आप ब्रेन जो है ओवरऑल कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, क्योंकि आपका तनाव जो है ना ये क्या कहते हैं डायबिटीज वगैरह क्रिएट करने में ज्यादा उसका रोल रहता है तनाव। यानी ब्रेन इज ऑल्सो कंट्रोलिंग, hypothalamus controlling and the pituitary gland is also controlling, but primary control इसका सभी ग्लैंड्स पर है। अगर आप किसी ग्लैंड के लिए अब ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो आपको उस ग्लैंड का रिफ्लेक्स पॉइंट के अलावा आप पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, है ना। आई थिंक कैन यू समराइज? Yes, yes, sir. Okay, so हेलो, let me एक्सक्यूज मी just. सर, एक क्वेश्चन है। हाँ या Yes, एक क्वेश्चन था, जैसे ग्लैंड वाला इसमें हाथ में सब ग्लैंड्स दिखाई है और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड पैर में दिखाई है, तो बाकी ग्लैंड्स पैर में नहीं होते हैं क्या? अरे वो पैर में है ना। यस यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये जो as we है will see पैर later, में, sir. एक second, let पैर me में just नहीं explain. मत दिखाए। Sir, देखिए, excuse me. हाँ एक बार मैं ये समराइज कर देती हूँ, फिर समराइज हम इस कर पे दिया, जाएंगे। हो सकता है वो सारा जी क्लियर हो जाएगा आपको। इनका जी अच्छा है समराइज के, अच्छा समराइज। Hello. Yes, hi. Please, hi. I will appreciate if there is a break so that
I will follow whatever you people are doing. What? Pardon me, Thank I you. come again. I said I will appreciate if there will be a breakup for you to translate Yes, yes, because the long Well, time well, of that is what period. I'm doing. That is what I'm doing that right will now. be. Ye- Yes. Thank you. Okay? Yeah, yeah. Welcome. सर आप मुझे अलाउ करो स्क्रीन शेयर करने के अच्छा, लिए. हाँ, या हाँ, स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हमने बंद किया हुआ था क्योंकि इट वाज मिसयूज्ड ऑल द टाइम. हाँ, यस, गो ऑन. Okay. All right. So can you see my screen? Yes, I can. All Thank right. you. So yeah. Okay. So now this is basically the endocrine system. Correct? Now, very first we Yes. have hypothalamus. Now, hypothalamus, the hypothalamus is in the brain. Okay. What does hypothalamus do? It regulates hunger, it regulates thirst, sleep, and wakefulness, plus most of your involuntary mechanisms, you know, including body temperature, is controlled by hypothalamus. Okay. There is one more system which is called as exocrine system. What is the difference between endocrine system and the exocrine system? Endocrine system releases hormones, whereas endocrine system releases hormones as well as enzymes. This is the difference between the endocrine system and the exocrine system. And one of the main exocrine system is pancreas because it releases hormone as well as enzymes. Correct? Now, did you understand the difference between the endocrine system and the exocrine system? Let us go ahead. So मैम the very प्लीज एक first, बार फिर से समझा दीजिए. Excuse me, Please, can मैम. you make reference to exocrine system more? एक बार Thank रिपीट you. कर दीजिए, समझ में नहीं आया. हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, मैं ये ना मैं इरेज कर रही हूँ, फिर मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है. देखिए क्या होता है हमारे बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम होता है और एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है. करेक्ट? एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, I'll go with English because then everyone can understand, right? So we have two systems in our body. One is endocrine and one is the exocrine. Correct? Now, exocrine produces hormones and enzymes. And the main and exocrine system gland is a pancreas. We have endocrine system which produces hormones. Okay. Now, in the endocrine system, we have very first, that is hypothalamus. Now, hypothalamus, it regulates hunger, thirst, sleep, and wakefulness. Plus, most of your involuntary mechanisms is controlled by, including the body temperature, by hypothalamus. Okay, and it is located over here. Correct? Now let us talk about pituitary gland. Pituitary gland, see, we need to understand the mechanism of the endocrine system so that whenever we have any problem in our body, we can understand that, okay, which particular gland is actually controlling it. And then we can treat that particular gland because that is plotted on our palm. We know the correspondence in the palm. Correct? Yes, no? Yes. 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 All right. So pituitary gland controls all other endocrine glands, influences growth, metabolism, and regeneration. And where it is located? It is actually located. I'll show you another picture. There it will be very clear. Just now understand the details about the glands. Okay. And it is located just below the hypothalamus. And pituitary gland has two lobes. One is anterior and one is posterior, and both the anterior and the posterior, they have different mechanism, they have different organs to control, they have different duties. Okay. Then we have this thyroid gland over here.
This is thyroid gland. Okay, just on top of thyroid gland, can you see these dots over here? Now this is the parathyroid. Okay, what thyroid gland, what does it do? It regulates your energy and metabolism. Say for example, if you are gaining weight, or if you have obesity kind of a thing, then you have to focus on thyroid glands. Okay, now if you have okay, let us talk about parathyroid. Parathyroid secretes the hormones necessary for calcium absorption. So whenever there is some calcium related issue, so that means there is this parathyroid which is responsible. Okay, now let us come to pancreas. As I told you, pancreas is an exocrine gland. Okay, now pancreas, it releases hormones as well as enzymes. So when I say it releases hormones, it releases insulin. Okay, and when I say it is an enzyme, enzyme means it helps in digestion also. Okay, now let us check thymus. Thymus basically is an immunity gland also we call, or we call it lymphatic gland also. Why? Because thymus helps fight infection. It is a resistance to disease. Okay, but point here to be noted over here is that thymus gland is active till puberty. Till puberty. After puberty, it shrinks down, and it becomes like a fatty tissue. But till puberty, it collects all the T cells, all the B cells to fight the diseases. Correct? Clear? Yes, no. Clear, Yeah. clear. Now, let us come to adrenal glands. Adrenal glands are a cap-like thing on the kidney. Okay, what does it do? It secretes hundreds of compounds, including cortisone and adrenal, which helps you react to emergencies. It regulates your metabolic processes in the cells, water balance, and blood pressure, etc. Say for example, adrenal. When I talk about cortisol or adrenaline. So basically, what happens is whenever there is a threat, whenever there is a stress, so your body has to deal with that stress. So your body mechanism is made in such a way that it immediately puts you in the fight and flight mode. Correct? So when it puts you in the fight and flight mode, so these kind of hormones has to be released to control the body temperature, the blood pressure, and everything else. Correct? Now let us talk about ovaries. I'm just giving you a summary because it's a lengthy topic altogether. Ovaries and testes. Okay, ovaries and testes are also glands, endocrine glands. Okay, so now ovaries influences how your blood circulates and determines your mental vigor and your sex drive. And testes in males also does the same. Okay, so this is just a rough idea about the endocrine system. I'll just show you another picture. Just hold on. Can you see my screen? Can you everyone see my Yes, screen? Yes. Okay. So I told you that yeah, hypothalamus yes, yeah, just beneath the hypothalamus, we have this pituitary gland. Okay. Now look at the function of the pituitary gland. I told you that we have this anterior pituitary and we have this posterior pituitary. Now anterior pituitary is responsible for, see what? Bone, muscle, organ, growth hormone, everything. It is also responsible for prolactin. Prolactin is used whenever a lady is breastfeeding the child. Okay, LH and FSH, they both are responsible for the ovaries and testes function, because they secrete such kind of a hormone, like we say estrogen and testosterone. Testosterone is released in males, and estrogen and progesterone is released in females. Okay, then anterior pituitary also controls this
adrenal cortex. That is the, it also controls the cortical hormones. Like just few minutes back, I told you that it controls the adrenal secretion and the cortisol secretion. All right. It also produces TSH. Okay, anterior pituitary also controls the TSH. TSH is what? Thyroid stimulating hormone. So, supposing if you have any thyroid problem, you know which part of the area is in the brain is actually affecting that. You're getting me? That is what Sir said. That if ever whatever problem that you have to focus on the brain. It will be taken care of. Yes. All right. Now, the posterior part. Okay, the posterior part actually produces ADH. ADH means it's a vasopressin, means it controls the water element of the body, and that is done through kidney. Okay, it also releases oxytocin. Oxytocin actually helps help the female. What do you say? Uh, for the labor pain during the delivery. Okay, it actually affects the breast as well as the uterus. Okay, clear? Correct. Clear. Thank you. All right. So next, ahead, sir. Okay. Thank you so much, Shamala. You're Thank you, welcome. My pleasure. Shamaji. Thank you very much. Thank you. हाँ, एक क्वेश्चन मेरा और है सर। हाँ जी, सर। हाँ, अभी जैसे मैम ने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड किडनी को भी कंट्रोल करती है हार्मोन्स के लिए। तो फिर जब डायबिटिक पेशेंट है तो उनके पिट्यूटरी ग्लैंड पे और किडनी के ऊपर एक कौन सी आपने जो ग्लैंड बताई थी उन पे भी ट्रीट करना चाहिए? मैम आपकी आपको ये आवाज नहीं देखना आ रही। होगा, हाँ, आपको ये देखना होगा, सर बताएंगे। वैसे आपको ये देखना होगा कि डायबिटीज के लिए क्या कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। वो पैंक्रियाज है। बिकॉज हाँ, पैनक्रियास डायबिटीज और के लिए, हाँ, अगर वो इंसुलिन या तो ज्यादा रिलीज हो रहा है और वो कम या तो कम रिलीज हो रहा है, करेक्ट। तो आपको हाँ, पैंक्रियाज पे फोकस करना होगा। और पैंक्रियाज को कौन कंट्रोल करता है, आपको ये देखना होगा कौन सा ब्रेन का ऑर्गन कंट्रोल करता है। ये अभी सर बताएंगे। सर, एक्सक्यूज मी सर। Very sir. Any other question till then? तो मेरा एक और जो क्वेश्चन था कि फुट में नहीं दिखाया गया है ग्लैंड्स किधर किधर होती है। Well, I don't know, sir. Must not have sent the picture. I'll, yeah, जब सर बताएंगे फिर आप what he wants to show. बाकी अभी जो glands का मैंने बताया, is it clear how everything is all controlled? See the system of the हाँ body. It is amazing. मैम, वो It's पिक्चर amazing. आप एक बार ग्रुप में शेयर कीजिए ना, दोनों भी पिक्चर अभी आपने जो दिखाए हैं। Sure, Well, sure. I अभी have a question here. yes, Can you मैम hear मेरा me? एक क्वेश्चन है। हेलो yes, Can you hear me? हेलो हेलो Hello. yes. हेलो Um, Naomi. श्यामला मैम। Yeah. as regards to thyroid, हेलो yes. हाँ मैम, Are एम you आई with ऑडिबल? me? हेलो Yes, Neeta ji. Yes. Say. हाँ I'm trying to मैम ask a मेरा, question. One second, हाँ hold. मेरा एक क्वेश्चन Naomi था is मैम। asking a question. Hold. Yeah, 1 second. Naomi, yes. Yes. हेलो जब My question जब goes like टेस्टेस this. Hold जब on, Neeta ji. One टेस्टोस्टेरोन की second. लेवल Hold बढ़ on. जाती है। Neeta हेलो ji, hold on. 1 second. Hold, hold. Yes, Naomi. My question goes like this: with the problem of a thyroid gland for somebody with PCOS, I'm it can affect the hormonal imbalance in somebody with PCOS trying to get pregnant. What are the methods in which one can do to arrest such? I actually, half of the thing right in the beginning, I couldn't understand. You said Okay, something I'm about I'm I'm talking tongue. about um, thyroid Your voice gland. was cracking. Actually, your voice was cracking. Okay, sorry. Can you hear me better now? Yes, yes. Say. Okay. I was asking a question concerning the thyroid gland.
Yes. With the hormonal imbalance affecting somebody with PCOS, what can one do to arrest the hypothyroidism? That does it work. For Yeah. PCOS, we have multiple reasons for PCOS. Okay. That sir will tell. Yeah, so I don't know where sir went. Yeah, we'll discuss that in the query session. Yeah, Okay. Thank you so much. Thank you. you're welcome. Yes, Neetaji, say. Ma'am, I have one question. When the level Hmm. of testosterone is increases, it is Hmm. converted into dihydrotestosterone. As a Okay. result, baldness can be uh, create on males Oh, head. acha, acha, So sorry. how Hmm. Uh, how to we treat it? sorry, I could not. Yeah, Yes. sir. Yeah, some people they have questions. Yes, Neetaji, continue your question. Yes. Uh, Now, sir, hmm, when testosterone level is increases, uh, it is converted into dihydrotestosterone, what resulting testosterone level res- increases? Uh, uh, then resulting what? in baldness, Uh, resulting in baldness in uh, males. yes, How can we treat it? yes, right. Now there are a lot of questions here. We must go in some details, and then I will go on another. First thing is that don't get confused at all. Very much. Professor Parr didn't try to confuse. Sir, Uh, may I? 1 second. Sir, may I? 1 second. क्या? Sir, excuse me. हाँ बोलिए. May I? 1 second. See, the question that she's asking. So Hmm. I just showed you the picture that which particular part of the brain is controlling the testosterone. You can treat that part of the brain. Simple. Hypothalamus, no? Yes. Just अरे आप Hypothalamus and pituitary gland. आप देखिए ना, ऐसे कुछ नहीं होगा ना. पहली बात हाँ तो कि बोलिए सर. आप पहली बात को आप पहले सुनिए तो सही है. ये हाँ यू बोलिए मस्ट सर. ट्राई टू हियर इट बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स टू डिलीवर. पहली बात तो ये है कि किस ऑर्गन से कौन सा, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है, और उस हार्मोन की वजह से शरीर में क्या क्या जो सिम्टम्स आने लगते हैं, और वो डिजीज का क्या सिम्टम आता है. इसके लिए तो बहुत सारी किताबें आप पढ़ लीजिए. प्रॉब्लम ये है कि हमको ये देखना है कि अगर हमको ये पता चल जाता है कि इस बीमारी में पानक्रियाज का रोल है, या इस बीमारी में एड्रिनल ग्लैंड का रोल है, या इस बीमारी में थायराइड का है, तो फिर उस पॉइंट पर जाकर के हम प्रेस करेंगे. इतना ही काम तो है, इससे ज्यादा तो कुछ काम नहीं नहीं है. सर, वो नहीं बोल रही. अगर अगर बढ़ गया है तो क्या हम उसको बस एडिशनली क्या मतलब करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड करना है, क्योंकि ग्लैंडुलर जब काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारा जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट करते हैं, तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर लास्ट में किडनी पर करते हैं, सो दैट कि कोई ऐसा टॉक्सिन हमने निकाल दिया वो निकल जाए. ऐसा करते हैं ना कि किडनी करते हैं, और उसके बाद लास्टली ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि ये फंक्शनिंग बेहतर हो. ये इतना ही तो काम करते हैं. अब क्या है तो कि मतलब जब इनऑल हमको किडनी, लीवर और ब्रेन और ऑर्गन ऑर्गन का जो पॉइंट है, इसको चारों को मिला के करेंगे तो हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा. ऐसा अरे ही बोलना चाह रहे हैं ना? ऑर्गन को ठीक है, उसमें आपको ये देखना है कि किसी ऑर्गन से रिलेटेड है, तो फिर आप उस ऑर्गन में जाइए. आपको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट डॉक्टर के हिसाब से हुआ, या फिर आपका सिम्टम के हिसाब से जो आप स्टडी करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसके हिसाब से उसका तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा ना. आपको तो इतना ही करना है. आपको नहीं कोई सर, दवाई तो नहीं लिखनी है. आपको दवाई नहीं ना लिखना है. आपको तो कोई पॉइंट सिलेक्ट करना है, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द पॉइंट यू जस्ट प्रेस इट आउट एंड एवरीथिंग इज ओके. सारा बीमारी खत्म नहीं हो. सर, क्या इसमें सीडेशन और स्टिमुलेशन का भी कोई रोल होता है? इसमें सेडेशन स्टिमुलेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है ना. अच्छा. आपको हाथ में कुप्रेशर करते हैं, पैर चलते हैं पैर से, तो फिर आपका ना तो सेडेशन होता है, ना स्टिमुलेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है. वो तो केवल तो कहाँ बात आप कहाँ का कहाँ उठा रहे हैं, कोई नहीं मतलब सर, ही नहीं. हमारी जो क्यूरी है इसलिए सर, वो भी तो पूछ रहे हैं. सीधी सी बात है कि आप ये जान लीजिए कि जो अभी ग्लैंड्स का रिफ्लेक्स पॉइंट्स आपके हाथ में और पैर में है, पैर में भी आप उसके हिसाब से जो है ना, जैसे हाथ का है, अगर प्रोफेसर पार्क की किताब में ये नहीं दिया हुआ है,
उन्होंने शायद छोड़ दिया या मिस हो गया जो भी है, या उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया। अब क्या कीजिए, अब आपको निकालना है, तो मैं आपको बता रहा हूं ना, हाथ में जहां जहां आपको मिला, पॉइंट्स मिला ना, थायराइड ग्लैंड का मिला, उसका एड्रिनल ग्लैंड का मिला, सारा चीज का पॉइंट आपको मिला। अब उस पॉइंट्स का जो कोरस्पॉन्डिंग पैर में आता है, जैसे ऑर्गन सिलेक्ट करते हैं उसी तरह से आप उसको सिलेक्ट कीजिए। श्यामला जी ने अच्छा किया जो बहुत सारे चीज बता दिया, लेकिन आप यही दिक्कत होता है ना कि ज्यादा जानने का बाद ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जितना सिंपल बनाएंगे ना तो उतना जल्दी आप फटाफट ठीक करेंगे, और जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या है कि लेमेंस वे में काम करिए ना। पता चला कि पेशेंट कह रहा है कि थायराइड का प्रॉब्लम, इस पर रिसर्च तो हो गया, पेशेंट तो 10 डॉक्टर क्या घूम करके आगे कि नहीं चलो भाई थायराइड का, या पीसीओडी है वो उसको पता चले। पीसीओडी का उस राग से यहाँ पर पॉइंट है, उस आप हमसे पॉइंट पूछिए और वहां पर आप काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। इसलिए डोंट ट्राई टू गो इन डिटेल्स। ये बात अच्छी बात है कि ग्लैंड्स का कितना कितना रोल है, उस सारा रोल आपको जानना चाहिए, सो दैट कि आपको ये फाइनली कंक्लूजन निकाल सकें, प्रिस्क्रिप्शन आपका है हो जाए कि वो ग्लैंड पर ही हमको काम करना है और उसको प्रेस करना है। नो सेडेशन, नो टोनिफिकेशन, नथिंग लाइक दैट। कुछ ग्लैंड के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं जिसका सिक्रीशन बढ़ना या घटने से, ये भी तो मालूम कुछ पड़ना भी चाहिए ना एडवर्स सर। इफेक्ट नहीं होगा जब आप प्रेशर करेंगे, कोई एडवर्स, ये भी केवल तो फायदा ही होगा। पता होना चाहिए ना क्या कि अगर सिक्रीशन बढ़ गया है तो क्या तकलीफ वो तो होगी मैं कह रहा पेशेंट हूँ ना को। कि पहले उसके बारे में जो आपका रिपोर्ट आता है ना, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, उसी में सारा आ जाएगा कि कौन सा उसमें समरी और कमेंट्स लिखता है ना कोई भी पैथोलॉजी में, क्या इनको या ये है दिक्कत, और उसको आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सिम्टम पूछ लीजिए, थोड़ा एक आध किताब उताब उलट लीजिए कि इसका कौन कौन हार्मोन्स की वजह से क्या क्या होता है, और उसके बाद फिर आप प्रेशर करना है ना, केवल नो सेडेशन, नो टोनिफिकेशन, सिंपली डूइंग लाइक दिस एंड पेशेंट विल बी ऑल राइट। क्यों कंफ्यूज होना है, जितना आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो फिर आप जब ये सब ज्यादा जानने का जब आप डिस्कस करेंगे ना, तो आप कभी सुजोग ना कर सकेंगे और कभी आप पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप जानेंगे तो फिर आपको लोग एलोपैथी वाले को वो यस यस। अच्छा भाई, थायराइड में जो है उसका जो सेल्स का होता है, थायराइड के पीछे वाले भाग में क्या होता है, आगे क्या होता है, दाएं क्या होता है, आपको जब एलोपैथिक डॉक्टर पकड़ लेगा ना तो आप बाप बाप चिल्लाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना जो जो आपके हाथ में, वो एलोपैथिक हाथ में क्यों देना चाहते हैं, कभी मत दीजिए, वो आपके हाथ में ज्यादा पावर है, ये आप समझिए, समझ गए ना, आपके हाथ में बहुत ज्यादा पावर है। बस थायराइड का वो कहे कि ये थायराइड का उस सेल क्या होता है, थायराइड के पीछे और पैराथायराइड में उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी से ये होता है, ज्यादा कंफ्यूज करे, कहिए कि भैया आप प्रणाम करते हैं, आप जाइए, हमको ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का, एंड आई एम ट्रीटिंग, और इसको प्रेस कीजिए और पेशेंट इज ऑल राइट, समझ गए ना। अच्छा, मतलब हाइपर हुआ तो भी हमको कुछ नहीं, वही हाइपर हुआ लेना है हाइपर हुआ दोनों में यही काम करना, प्रेस करना बस। हाइपर हो हाँ, उसको जानने की जरूरत क्या है, थायराइड है बस, इतना ही नहीं, काफी। खाली थोड़ा मोड़ा जान लीजिए कि हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म में जो है बॉडी में जो एकदम मतलब स्लिम हो जाता है पेशेंट, बस ये हो जाता है। इतना ही जानिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। द मोर यू नो, मोर गेट कंफ्यूज, मोर यू आर ट्रैप्ड टू द एलोपैथिक डॉक्टर, जो कि 4-5 साल पढ़ा, आपको तो महीना 2 महीना भी कुछ नहीं जानते हैं आप, थोड़ा सा बायोलॉजी का भी आइडिया नहीं है, बट स्टिल यू आर ए डॉक्टर एंड यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट एंड द पेशेंट आर गेटिंग क्योर्ड। 10 डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ से छटा हुआ पेशेंट आपके पास आता है, आप 11वां डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर हो गए कि जिसके यहाँ 10 डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने ना ठीक कर पाया, और आप 11वां इतना बड़े डॉक्टर है कि उससे भी बेटर है कि आप फट से ठीक कर दिए। तो आपको गर्व होना चाहिए ना कि आपका काम कितना कर रहा है, आपका पैथी कितना पावरफुल है, यू मस्ट नो। इसके लिए आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जानना है कि कौन सा पॉइंट है वहां पर, आप सिंपल जानिए, कुछ नहीं समझ में आया कहिए कि भैया टहलो टहलो, पैर का पूरा प्रेस कर दिया। हमारे यहाँ बिहार में, पटना में कुछ थेरेपिस्ट हैं जो अच्छा पैसा का 50,000 60,000 रुपया कमा रहे हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, वो मेरा ही चेला कुछ लोग हैं जो 1 आध महीना हमसे सीख के भाग जाकर के ट्रीटमेंट करने लगा। जानते हो क्या करते, सिंपली डूइंग ऑल द टू 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 टू, सारा 1 घंटा तक किया, सारा पॉइंट स्टिमुलेट हो गया, पेशेंट का, अरे वाह मेरा तो बीमारी ठीक हो गई। बहुत लोग 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये दे देते हैं मंथली पर रखे हुए लोग।
समझ आना, इसलिए डोंट कंफ्यूज। पहले तो आप ये जानिए कि ये Hello, जो, sir. हाँ यस, शुड आई स्टार्ट? अंडरस्टैंड माय पॉइंट, डोंट यस कंफ्यूज। सर, क्लियर यस सर, यस सर। तो बताइए, ठीक ना? हेलो, हेलो, हाँ, क्या कुछ बोला सर आपने? क्या नीता जी? हाँ, कुछ बोले आपने? नहीं नहीं, हम कह के आप सेटिस्फाइड है ना, कोई क्वेश्चन अब नहीं ना है, हम आगे बढ़े? हाँ, ये समझ में आ गया सर कि आपने बोला कि जितने हाथ के पॉइंट से अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, हाथ और पैर के पॉइंट से कर दो, सिमुलेट कर दो, ठीक है, हाँ, तो उसमें रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे चाह रहे हैं ना? बस बस बस, जैसे टहलने से सारा बीमारी ठीक होता है, क्योंकि वहां एक्यूप्रेशर सारे पॉइंट का हो जाता है। तो सारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डायबिटीज है तो टहलो, ब्लड प्रेशर है तो टहलो, इंडाइजेशन है तो टहलो। टहलने से क्यों ठीक होता है भाई? वहां तो एक्यूप्रेशर हो रहा है ना पैर में। कोई भी काम करोगे तो आपका सारा चीज ठीक हो जाता है। इसमें कुछ जानने की जरूरत क्या है, जब हम फटाफट ठीक कर ही रहे हैं। और उससे जो बच जाता है तो ठीक है, आपके पास आया एज ए डॉक्टर, आप सिंपली ये देखिए कि टहलने से बहुत सारा पॉइंट प्रेस आउट नहीं होता है। मे बी के पैर में नहीं ठीक से प्रेस आउट हो रहा है, हो सकता है थायराइड का पॉइंट टहलने से प्रेस आउट नहीं होता है। तो ये चूंकि अंदर है, अंगूठे के अंदर है, गले वाले पॉइंट पर है, वो नहीं प्रेस आउट हो रहा है, आप उसको प्रेस कीजिए, सीड लगा दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आप 11वां बड़े डॉक्टर हो गए, क्योंकि 10 डॉक्टर से वो पेशेंट भाग के आया, आप 11वां बड़े डॉक्टर हैं, उससे भी बड़े डॉक्टर हैं, आपने तो थायराइड ठीक कर दिया। वो बेचारा 10 साल से थायराइड का 10 डॉक्टर का चक्कर लगाता रहा और लाखों रुपया खर्च भी किया, आप फटाफट कर दिए। ठीक है, आपको ज्यादा पैसा नहीं देगा, 1000, 5000, 10,000 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि आप तो सिंपल करेंगे ना, आप तो उसको बेवकूफ बना नहीं रहे। तो आप जो है, लेकिन कोई बात नहीं, सर प्लीज लेट see the topic. सर एक बार सबको ऑफ माइक म्यूट कर दीजिए सबका। Sir, let's stick to the topic, please. यस, नाउ लेट अस गो। ये And आप, question answers को सर 7:30 पे I कर think, सकते हैं। hello, हाँ, ये अब हम लोग hello, देखते sir. हैं। यस, I अब think the सुनिए। best thing is for us to allow sir to finish the lecture before we have time यस to ask यस, some questions so that we can gain more. Thank हाँ, you. लेटर ऑन वी कैन आस्क, we'll discuss question answer in the question answer session. Let us hear the lecture now. Now I am talking Thank you, sir. about the yes. This is the, you go to the figure 56. Figure 56, you see the animal correspondence. Here you find that there is the animal correspondence. Animal correspondence, this is also called partial correspondence on hand and feet. तो पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस इज बेस्ड ऑन द एनिमल कॉरेस्पॉन्डेंस। आदमी, ये एनिमल्स जो है, ये अब तक हम लोग क्या जान रहे थे कि ये जो पूरा फेस है उसका यहाँ पर आंख, नाक, मुंह, ये ऑल द रिफ्लेक्स पॉइंट्स ऑफ द आईज, नोज एंड ये सारा का सारा इसमें था। यू फाउंड इट हियर, बट नाउ यू विल फाइंड हियर, नॉट हियर। व्हाई? Because of the homo factor, the similarity factor of homo working in our correspondence system. कैसे काम करता है? तो एनिमल जो है इस तरह से, जो जब एनिमल कोई चीज को देखते इस तरह से जो है ना वो मूव करता है। इसका मतलब क्या है? आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे सॉफ्टर पार्ट है कि नहीं है? गला, ये सब इसका ये वाला पार्ट है। जो आप कुत्ता को, बिल्ली को, किसी को आप देखें तो मुंह के नीचे का, यानी कि जो जॉ है, जॉ के नीचे का सारा भाग जो है होमो टाइप का दिखेगा, और इसके ऊपर का भाग दे आर द हेटेरो पार्ट, है ना। और जबकि ऐसे हम लोगों का सामने देखे तो ये सारा का सारा सॉफ्टर पार्ट, होमो पार्ट दिखता है। बट इसमें भी हम लोग अगर देखें तो दिस पार्ट इज मोर सॉफ्टर हियर, है ना। बहुत लोग देखिएगा, लेडीज लोग जो है अपना मुंह ढकेगी तो यहां तक ढक लेगी, यानी कि दे वांट टू हाइड द सॉफ्टर पार्ट, द होमो पार्ट, एंड दे, इसको कोई नहीं ढकता, ऊपर वाला भाग को नहीं ढकता, है ना। तो दिस, इसका मतलब दिस इज द हेटेरो पार्ट स्टिल, एंड दिस द होमो पार्ट। अब इस होमो पार्ट में क्या है कि आपका माउथ है, जो नेल है, दिस नेल, यहां से आप बाइफर्केशन कर सकते हैं कि यहां से जॉ का जो अपर
इसमें पूरा डेंचर, ये जो यहां से लेकर के यहां तक है, ये पूरा का पूरा जो है इधर का दांत है। यानी कि आप ये इस तरह से आप करें तो इधर जो 32 दांत में 16 दांत इधर आ गया, इसके 16 दांत इधर आ गए, 16 जो आपका दांत है, टीथ है, ये इस साइड में आ गया, है ना। और इसके बाद अगर ऐसे अगर करें, उसको भी हाफ कर दें, तो इसमें जो है 8 दांत ऊपर आ जाएगा और 8 दांत नीचे आ जाएगा। यानी कि हाफ का इधर में 8 दांत है, 8 दांत इधर है, 8 टीथ आर हियर एंड 8 टीथ आर हियर। इसका बाइफरकेशन एक और फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां के मिड पॉइंट के बाद ये लाइन आपका जो है इस तरह से चलता है, ये इस तरह से ये लाइन है। यानी कि ये जो है आप यहां से यहां तक हाफ ले लीजिए और यहां से लेकर के ऐसे, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए ये yeah this you can now see, I think it is now clear। हाँ, ये इधर से आप ये देखिए, इसके नीचे का सॉफ्टर भाग यानी होमो हेट्रोलाइन इज हियर, और इधर में का होमो हेट्रोलाइन जो है ये इधर है ना। तो इस तरह से है। जब ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं है, ऐसा ही है, तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर नोज आ जाएगा। ये माउथ हो गया, तो माउथ के ठीक ऊपर में क्या आएगा, यहां पर माउथ तो खत्म हो गया क्योंकि उसका उसी के बीच में आपने बाइफरकेट किया, तो इसके ऊपर माउथ के ऊपर नोज आएगा। यानी कि यहां नोज विल कम हियर, नोज विल कम, क्या दिख रहा है ना, दिस यस दिस सर, इज अभी दिख नोज, रहा है। दिख रहा है ना, ये नोज हो गया। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आईज, ये आईज हो गया, इधर आईज हो गया, है ना, क्लियर। और ये हेड हो गया। इसको बड़ा ध्यान से सुनिए, ये बड़ा काम देगा, इसके बारे में और कुछ हम बताने वाले हैं, इसलिए यू मस्ट ट्राई टू बी अटेंटिव एट दिस पॉइंट। टॉप ऑफ द टिप ऑफ द हेड हो गया यहाँ पर, है ना। और इसके बाद ये जो नेक है, नेक इसके बाद आ जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये नेक का भाग आ गया, है ना, नेक। बहुत सारे एनिमल्स में नेक एकदम स्ट्रेट रहता है, इसलिए ये लगभग सीधा इसमें है, दिख रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर कि जब आप आंख का पॉइंट इसमें देखते हैं, यहां पर आंख का पॉइंट, और आंख का इलाज यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं आप, है ना, यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, यहां नोज है, माउथ है, तो आपका एक कॉरेस्पॉन्डेंस पार्शियल इसमें बनता है, पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। और जब ये पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस आपका यहां पर है, तो आप इससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हेड का जो ब्रेन का यहां पर आ जाता है, दिस एरिया, ये एरिया जो है यहां से लेकर के यहां तक का ब्रेन का भी आता है ना। ये एरिया देखिए, ये एरिया जो है ब्रेन का आ रहा है ना, यहां से लेकर के यहां तक। केवल इतना ही चीज को प्रोफेसर पार्क ने सिमिलरिटी के आधार पर जो देखा था, इस पर एक अलग किताब लिख दी उन्होंने। मजे की बात है कि इतना ही पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस की वजह से उन्होंने क्या किया कि एक अलग किताब लिख दी है, और उसका नाम उसमें जो है उसका नाम ये ट्राई ऑरिजिन ट्रीटमेंट सिस्टम है। वो ट्राई ऑरिजिन ट्रीटमेंट, इसमें फोर पॉइंट ट्रीटमेंट सिस्टम, उस किताब की नाम है 4 पॉइंट ट्रीटमेंट सिस्टम। क्योंकि ब्रेन में उन्होंने फिर देखा कि जब ये ब्रेन यहाँ पर आ गया, तो उसमें हेट्रो पॉइंट होगा, होमो पॉइंट होगा, न्यूट्रो पॉइंट होगा, न्यूट्रो पॉइंट होगा। उन्होंने एनालिसिस किया और फिर ये पॉइंट निकाला, और इतना पावरफुल पॉइंट है, एक पॉइंट से ही आप पूरा बहुत सारी बीमारियां ठीक कर ले। वो हम आगे बताने जा रहे हैं, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे कि 4 पॉइंट ट्रीटमेंट से कैसे आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसमें आपको फिर ट्राई ऑरिजिन का ज्यादातर रोल है, 6 की का नहीं है, ट्राई ऑरिजिन का, क्योंकि उसमें फिर ये न्यूटो आ जाता है, लेफ्ट लेग इज न्यूटो, आईज आर न्यूटो, नेक इज न्यूटो,
तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। एक पेशेंट हमारे पास आया था, तो उसको क्या किया मैंने, उसने कहा कि हमको बाएं पैर में दर्द है और कान में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द था, कान में दर्द था, बाएं पैर में दर्द था। तो उसको हमने ट्रायोर्जिन का पॉइंट पर प्रेशर दिया था और एक मटर का दाना, मात्र सिंगल पॉइंट, उसको 1 पॉइंट थेरेपी कहते हैं, केवल एक एक्यूप्रेशर का, सुजोक का पॉइंट, एक पॉइंट पर पैर में हमने लगाया था और उसका बाएं पैर का दर्द खत्म हो गया और कान का दर्द खत्म हो गया। और उसने कहा कि सर एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ भाई? तो आई एम अमेज्ड, वेरी सरप्राइजिंग थिंग हैज हैपेंड। कि व्हाट है सरप्राइजिंग थिंग? ताकि नेक पेन, मैंने आपको कहा ही नहीं था, नेक पेन भी खत्म हो गया, ये भी दर्द खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, नेक का दर्द खत्म हो गया। तब मैंने एनालिसिस किया कि उसके पैर में न्यूटो पॉइंट को लगाने के बाद बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर में जितने न्यूटो पार्ट थे, सभी जगह वो एनर्जी चला गया और सारा बीमारी एट ए टाइम खत्म हो गया। और जब हम आप बताने लगेंगे तो ये आपको बता देंगे दिस व्हाई दिस इज न्यूटो, आई ईयर्स न्यूटो एंड नेक इज ऑल्सो न्यूटो, तीनों एट ए टाइम दर्द खत्म हो गए। ये मेरे साथ हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसमें कि ये हेड और ब्रेन का एरिया आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर याद रखें। और फिलहाल तो आप इसमें नोज का, आईज का, जिस तरह से यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं उससे यहाँ भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ का ट्रीटमेंट जो आप करते हैं ना, उससे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ वाला होगा, बिकॉज दिस इज हेट्रो पार्ट, और हेट्रो वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है और फास्ट रिजल्ट देगा इन कंपैरिजन टू द होमो, राइट? तो ये हो गया। सर, हाँ, तो हम दोनों भी जगह तो एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कहाँ पर दोनों जगह? जैसे अभी आईज नोज अच्छा, दोनों को कर कॉरेस्पॉन्डेंस जो सकते हैं। हाँ सामने हाँ, फ्रंट है, ये है ना, ठीक है, दोनों में आप कर हाँ, सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा और भी जो हो सकता है अभी कि पीछे आपको जो बता, हाँ, ये वाला भी आपको काफी इफेक्टिव हो, मे भी किसी का मान लिया कि बीमारी होमो कंडीशन का है तो ये भी आ सकता है। लेकिन नॉर्मल केस जो है, जो पेशेंट आएगा हेट्रो टाइप का, हेट्रो जल्दी आता है, आंख नाक कान में जो दर्द होगा, एंड यू कैन ट्रीट and the patient will be cured immediately. So you can हाँ, तो treat all दोनों एक साथ this कर way सकते or हैं ना, this way. हाँ? कि एक के बाद एक करना, मतलब दोनों एक साथ कर सकते हैं कि एक के बाद एक करना होता है? अरे जो पेन सेंसिटिव आएगा उस पर न करिएगा, जिसमें नहीं आएगा उसको नहीं करना। अगर इसमें आ रहा है तो इसको कीजिए, अगर इसमें नहीं आ रहा है तो इसको अच्छा, कीजिए। तो जो आएगा आपको चेक करना होगा ना। क्लियर? तो दिस इज पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, एक हो गया। दूसरा पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस, नेक्स्ट आप चले आइए। ये फिगर आप देख रहे हैं, फिगर 57 है ना। इसमें जो 3 भाग में ऊपर बांटा गया है, यानी कि इसको 3 भाग में बांटा गया है, और 3 भाग में बांटा गया तो आंख जो है अपर थर्ड में आ रहा है और बाकी पोर्शन नीचे आ रहा है। तो ये सिंपली आप खुद आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसको देख लीजिए, है ना। बल्कि इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि टीथ का, दांत में किसी को दर्द हो तो आप गिनती करके यहां से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके साइड्स में जाकर, इसके साइड्स में जाकर के ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ये जो है दांत का नेल के पास में, ये सब पॉइंट पर आप प्रेशर दे करके दांत का इलाज बड़ा अच्छा से कर सकते हैं, और स्पेसिफिक एक दांत पर आप जा सकते हैं जहां आपको ट्रीटमेंट करना, ठीक है ना। ये पैर में भी होगा, हाथ में भी होगा, हालांकि और सब जगह है। इसमें और डिटेल में जाएंगे तो आपको ये लोकेशन बड़ा मुश्किल होगा कि किस फिंगर से हम करें, ये बाद की बात है। बट फिलहाल ये जान लीजिए कि कुछ नहीं समझ में आता है, यहां से आप कर लीजिए, ये मास्टर पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आप एक और कॉरेस्पॉन्डेंस आपको हम बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, या यस, कम टू द पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस 58 का आपको बताना चाहते हैं कि 58 में क्या है कि ये हाथ, ये हम आपको कह रहे थे कि ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, पार्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस में जितना बताएं उतना ही समझिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए।
ये जो है एक तो इधर हाथ है एक इधर, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का तो आपने कोरेस्पॉन्डेंस देखा, उससे आपका ट्रीटमेंट फर्स्ट क्लास होगा। बट कभी कभी क्या होगा, पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस से बेहतर ट्रीटमेंट होगा, है ना। वो कैसे होगा? ये हाथ जो है आप देख रहे हैं, यू आर सीइंग दिस हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, सपोज कि इसमें राइट हैंड दिखाया हुआ है ना, राइट हैंड जो है उसमें यहां पर दर्द है, यू हैव पेन ओवर हियर, यहां पर दर्द है। तो इस तरह से आप जो है, ये राइट हैंड पूरा का पूरा राइट हैंड ये होता था ना, दिस वाज योर राइट हैंड, बट नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द राइट हैंड। एंड ये पॉइंट जो होगा, ये पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस में शोल्डर ज्वाइंट पॉइंट होगा। This will become the shoulder joint pain because you have considered this finger as the right hand. It appears, look, suppose your body is fixed like this, and this hand is open like this, and your thumb is open like this, then this reflex will be here, and this will appear to be hand. This is now it, you should not consider it as the head and the throat and something like that. You should consider it as hand, and this is the shoulder joint, and here you can treat. तो ये प्रोफेसर पार्क ने पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस में ये भी बताया, है ना। उसके बाद आप आइए, ये भी आप देख सकते हैं, ये फिगर जो है आपका 59 है ना, 59 फिगर में ये सिंपल है, थोड़ा खाली ध्यान दीजिएगा कि जब आप बैठे रहते हैं और खड़े रहते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग और यू आर स्टैंडिंग, इन दैट केस योर टेल बोन पॉइंट, रिफ्लेक्स पॉइंट is shifted, है ना। When you are in sitting mode, then so the coccyx region goes inside, and the last point you will have here. But when you are standing, then the last end point will come over here. Shifting of the point goes in partial correspondence, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसमें हाथों में भी वो दिखाया हुआ है, ये भी शिफ्टिंग हुआ है। फिगर 60 में भी आप देखिए शिफ्टिंग हो गया है, जो ये आपका पेल्विस रीजन था जो लास्ट एंड तक जाता था, अब वो ऊपर थोड़ा गया है सिटिंग पोजीशन की वजह से, है ना। तो ये सब पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस का है, ठीक है ना। बल्कि कुछ एक लीवर का मैं आपको पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस बताऊं कि वो लीवर का पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस मैं आपको भेजता हूं। ऐसे बहुत सारा पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस है जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, इसमें लीवर का जो है ये फिगर है 69। इसमें देखिए ये पार्शियल कोरेस्पॉन्डेंस जो है, इसमें लीवर का है, ड्यूडोनम का है, गॉल ब्लैडर का है, स्प्लीन का है, पानक्रियाज का है ना। ये सब इसमें आ रहा है, राइट। तो इसमें ये जो कोरेस्पॉन्डेंस है कैसे है, ये पहले ये देखिए। व्हाई इट लुक्स लाइक दिस, बिकॉज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एक डायफ्राम, देयर इज लोअर डायफ्राम and there is upper diaphragm, but in the leg there are two lower diaphragms because of the soft part in the leg at the ankle joint, up to the ankle joint, it looks very soft, so it is homo, and so there is reflection of the abdominal area. Otherwise you have the edge of at the heel, at the boundary of heel itself, you have the lower abdomen area. But if you look minutely, you will find that the softer area, the homo area, comes up to the
दिस एंकल ज्वाइंट है ना, एंकल ज्वाइंट तक जो है ना उसका आ जाता है, तो वहां पर आपका एब्डोमिनल एरिया का जितना है वो सब आ जाएगा। राइट साइड में थोड़ा सा आएगा, इधर राइट साइड में आपका जो है लीवर का आएगा, जैसे ऐसे अगर पैर ऐसे जाएगा ना तो इस साइड में लीवर आएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, दाहिने पैर में इस साइड में आ जाएगा क्या, स्टोमक का, स्प्लीन का अदर आएगा। ये आप उसमें आप मिला करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका है, इसको हम तो हिंदी में बता दिया, कुछ लोग को इंग्लिश में जानना होगा, पता नहीं श्यामला जी कहाँ निकल गई। शी विल एक्सप्लेन। आई एम हियर सर। हाँ, yes. So, can you explain, or should we start question, because it is getting up to Yeah, 9? it is like already 9 o'clock. So you take up the questions. If somebody has a doubt, then we can repeat it tomorrow. Yes. Ask. Anybody, any question? In the partial correspondence. I will request Shamala to really brief me on what uh, has been No, said. Thank you, sir. some questions. I invite some questions, but you partial, in the partial correspondence, you have seen that there is similarity of our human body. किसी ने अपना माइक्रोफोन खोल दिया है? There's a lot of disturbance, loudness from your side. Kindly put off your mute your mic. Okay. There is a lot of disturbance. Yes. Yes, sir. है ना, तो Okay. ये this is similarity of the head in animal correspondence. Animals animals do like this, they open their mouth, then you find that this, because animal head is horizontal, so you see that this line goes horizontally, so all the homo area is towards the earth side, and sky side, from here to up area, it is towards the sky side, so it is hetero area, this is the homo area, and hence you find that the eyes, nose, this comes here, and teeth area is here, half of the teeth upside and half of the teeth downside. So this is the animal correspondence here, partial correspondence. Another correspondence was because this hand looks, not correspond, it looks as if that your this finger, suppose this is all closed, head would close like this, and this is like this, it means this hand looks like this hand. So if shoulder joint is there, you will find the shoulder joint point here, and you press it out and you get the result. So this is partial similarity. Sometimes it is more effective too. Another partial correspondence was in the leg. I have already discussed that there are two lower diaphragms in the leg. One is just at the periphery of your heel, and another is at the junction of your ankle joint, at the ankle joint, because there also you see that just like this area looking like homo towards earthly softer area, this the homo area, if below the ankle joint, Achilles tendon, there you find that there is this area is very softer, then it looks like homo area, and that area is corresponds to all the abdominal organs, not all the, but 1/3 of the abdominal organ, and in the 1/3 you will find the correspondence of liver, gallbladder, stomach, duodenum, pancreas, spleen, all this. Here this way, this leg you put like this, then this is the ankle, the bone of the ankle, and right side of the bone of the ankle you will find this liver area, and left side you will find the spleen, pancreas, and all that has been shown there.
And very important thing is that you must try to focus on this partial correspondence, because I also utilize this partial correspondence. Why I do like this? You just see that if you go on, in my last lecture I told you that you, if you go on liver, the liver was like this, and in the leg it is elongated like this, but whole area of the this correspondence of liver in the heel is very hard. Your heel is very hard. When you push through any jimmy over the heel, you will not get good result, because you cannot press so hard. But in the homo area, upper area is a bit softer, up to the ankle bone. You find the area very soft. Then you slowly press it out here. Then you can you have better option to just go to the correspondence of liver, gallbladder, or stomach or spleen and all that, and you will get very good result there. So that I utilize, and here also utilize. Two things I utilize too much. Maybe I'm missing this correspondence. I'm not very much utilized the shoulder over here. I most of the time I use this. Yeah, maybe I may forget to use this correspondence, but this I utilize very much, and this I utilize very much, because this is very fast and gives good result. Any problem to understand? Thank you so Well, much, sir, for the I'll explanation. quickly revise it, summarize it quickly, if we have Yes, time. summarize quickly within 2-3 minutes. Yeah. See, I want you to see this, okay? Can you see this? Yes, Now, say for example, this is your finger, correct? This is your nail area, correct? Now, correct. now, if these supposing and this is a a finger positioned in the front, and this is a finger position at the side, correct? Now, Correct. this this is a nail area, as I told you. So on the nail area also you can have the correspondence of the teeth. Now this particular area will be your upper teeth, and this will be your lower teeth, correct? And this is Correct. how it is distributed, this side, and the other side would be this side. You have to just imagine this. Next, just above the teeth, this sorry, just above this nail, okay, here you have nose, and here you have eyes, and here you have the other area of the brain, okay. So uh, another correspondence we had seen on the finger like this. We had this eyes, we had this nose, we had this ears, correct? Now we can see this above the nail. This is what sir is saying, that this is a nail area, and above the nail also you can get the same position, same correspondence, same, uh, what do you say, the plottings. You getting me? So how did we get this? This is a nail area, this is a nose, and this is a eyes. These are the ears. Correct? This much is clear? Yeah. Next is, yeah. Yes, Next ma'am. is, yeah. Next picture I'll try to show which source. Show this. Okay. So this is particular about the shoulder correspondence. So partial correspondence. So it's very clear. I don't think so I have to mention anything over here. So here is the shoulder, and on your hand you will find the shoulder correspondence over here. This is very clear. I don't think so thing to understand. Okay. Next is next was
Yeah, this is the animal position. Like, it's like protruding ahead, and that is the reason how we got that particular position on the finger like this, where there is a nail over here, and this is how we got the plotting. These are the teeth, I mean, and this is the nose. Sorry, nose, and these are the eyes, and this is ahead of the eyes, the forehead and everything. Correct? So this is a example of how the animal position is, and how do you say? This was plotted on the finger. Okay, and it is plotted on the nail side. That you have to remember. Correct? Nail side. Am I right? Is it clear or not? It's clear. Yeah, clear. Now another sir said about this picture. So if a person is sitting like this, and imagine, sorry, and imagine that this you have just bent your what do you say, hand, fist, and you make a fist, and at this end on the hetero side you have this point, and this is a point, same point in the body. This is how you have to plot it on your finger. Correct? And same is plotted over here. That's it. Thank you. So that's it for today, I guess. Thank you for the Thank you. You're welcome. illustration. Thank you. I think it is all clear, and tomorrow we'll discuss any question answer or something like that, or you can discuss some disease also how to cure, because tomorrow will be the last session. Hmm. So we will discuss all the things, and I think more discussion should be on question answer session rather just teaching some new theories or new chapters. So, So sir, let us have a question answer session the whole time tomorrow. whole time, tomorrow whole time that will be the question answer session. Yes, okay. Beautiful. Thank you so much, Thank you, Thank thank sir you. you. and Thank you, Shamala. guys. Okay, Thank you. namaskar Thank you, everybody. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good Thank night. you so Thank much. you, sir. Thank 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 you, you. you. Saji. It's been Yes, nice listening to you, sir and Shamala. Thank you. Thank yes. you. Thank My you, pleasure. Shamala. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank Good you. good God bless. night, Thank you. everyone. Have a good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I thank